یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ فیسکو کے 4000 صارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا فیسکو انہیں پیسے دیتا ہے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ فیسکو کے 4000 صارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا فیسکو انہیں پیسے دیتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں الٹی ہی گنگا بہنے لگی ہے۔ فیسکو کے 4000 صارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا فیسکو انہیں پیسے دیتا ہے۔ جی ناظرین، کیا آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ نہیں؟ یہ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 41 کا نیوز بلیٹن۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ فیصل آباد میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ فیسکو کے 4000 صارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا فیسکو انہیں پیسے دیتا ہے۔ الٹی ہی گنگا بہنے لگی ہے، کیا معاملہ ہے اور وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھیں اسی بلیٹن میں۔ آپ کو بتائیں گے کچھ ہی دیر میں کہ وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں اور آپ کیسے خوش قسمت بن سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کا معاملہ۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بلال اشرف بسرا اور دیگر گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ دوسری جانب وکلا پر درج ایف آئی آر اور بار میں پولیس کے داخلے کے باعث وکلا کی ہڑتال 10ویں روز بھی جاری رہی۔ تفصیلات دیکھیے حاشر ورائج کی اس رپورٹ میں۔ سابق صدر بار بلال اشرف بسرا کی رہائی کے لیے دائر درخواست پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد بشیر شیخ نے سماعت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ جیل میں سی سی ٹی وی و جیمرز کے ہیڈ نے بھی عدالت میں جواب جمع کروا دیا۔ ذرائع کے مطابق عدالت میں جمع جواب میں کہا گیا ہے کہ بلال اشرف بسرا کے جیل سے باہر جانے کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت سوموار تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں پولیس کے داخلے اور وکلا کی گرفتاری کے معاملے پر وکلا کی 10ویں روز بھی ہڑتال جاری رہی۔ عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ بار کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا گرفتار وکلا کی رہائی تک ہڑتال جاری رہے گی۔ وکلا کی ہڑتال کے باعث عدالتوں میں آنے والے سائلین کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشر وڑائچ، فیصل آباد۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مرد اہلکاروں کو خواتین کو حراست میں لینے سے روک دیا۔ مقدمات میں ملوث خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنائی جائے گی۔ پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین اس وقت مطلوب ہیں۔ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ پنجاب محسن نقوی نے مرد پولیس اہلکاروں کو خواتین کی حراست سے روک دیا۔ پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین اس وقت مطلوب ہیں۔ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ان مقدمات میں ملوث خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے ٹی سی کی دفعات کے تحت درج ایف آئی آرز میں شامل خواتین کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ فوجی مقامات پر حملوں، خاص طور پر جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود خواتین سے لیڈیز پولیس اسٹیشن میں آ کر خود گرفتاری دینے کی صورت میں رعایت برتنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں گے پنجاب میں پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 17 ارب کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ فیصل آباد انڈسٹریل نو اسٹیٹ کمپنی، پنجاب سولر پاور کمپنی، پنجاب ملر ڈیولپمنٹ کمپنی، پی آئی ٹی بی بورڈ، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پنجاب فارمیسی اور دیگر کمپنیاں شامل ہیں۔ کمپنیوں میں 24 کروڑ کی بے ضابطگیاں اور فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل کی سال 2021 سے 22 میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ جاری کرتی۔ دیکھیے اس رپورٹ میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 17 ارب کی مالی بے ضابطگیاں، کمپنیوں میں 24 کروڑ کی بے ضابطگیاں، فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل نے سال 2021-22 میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ غیر قانونی بھرتیوں پر 28 کروڑ کی بے ظاہری پر 18 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ 22 کیسز پر 4 ارب کے غیر ضروری اخراجات ہونے پر آڈٹ پیرا بنائے گئے۔ کمپنیوں میں سب سے زیادہ غیر قانونی خریداری کی مد میں آڈٹ پیرا رپورٹ۔ غیر قانونی خریداری سروسز کی مد میں 11 ارب روپے کا نقصان خزانے کو پہنچایا گیا۔ نان ریکوری کی مد میں 18 کیسز میں 12 ارب کے آڈٹ پیرا رپورٹ ہوئے۔ مالی بے ضابطگیوں میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کمپنی شامل، پنجاب تھرمل پاور کمپنی، پنجاب سولر کمپنی شامل ہیں، قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی، پنجاب ایجوکیشن اینڈ انرولمنٹ فنڈز شامل، صاف پانی کمپنی ساؤتھ پنجاب، فیصل آباد انڈسٹریل 9 اسٹیٹ کمپنی شامل۔ مالی بے ضابطگیوں میں پنجاب ماڈل بازار کمپنی شامل، پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ، پنجاب شمال انڈسٹری
इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन शामिल, पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी, पंजाब लाइफ स्टॉक डेयर डेवलपमेंट बोर्ड शामिल, पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कंपनी PITB बोर्ड, शक्ल डेवलपमेंट फंड का नाम भी शामिल, अर्बन यूनिट, पंजाब पॉपुलेशन इनरोलमेंट फंड्स, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी शामिल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब फार्मेसी काउंसिल शामिल, पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई, टेफ्टा सियाहत ट्रांसपोर्ट कंपनी में करोड़ों की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। नाजरीन, अब आपको खबर दें जंग से। जंग में THQ शोर कोट में संगीन माली और इंतजामी बद इंतजामिया। डॉक्टर्स की गफलत के बायस अस्पताल में हर माह औसतन 15 बच्चे मौत के मुंह में जाने लगे। महकमा सेहत ने जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। देखिए अवैस खान की रिपोर्ट। THQ शोर कोट में संगीन माली और इंतजामी बद इंतजामियों का बड़ा स्कैंडल। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने साबिक MS डॉक्टर नवीस अफदर, मेडिकल ऑफिसर इमरान हैदर और लैब असिस्टेंट मोहम्मद इसहाक के खिलाफ फीड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। इंक्वायरी के अहकाम स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस ने जारी किए। मरासले के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत के बाइस बच्चों को तिब्बी सहूलियात नर्सरी की बजाय आम वार्ड्स में दी जाती रहीं, जिससे हर माह औसतन 15 बच्चे मौत का शिकार हुए। अस्पताल में सहूलियात मौजूद होने के बावजूद जनाब लैब से मरीजों के टेस्ट होते रहे। जनाब लैब का मालिक लैब असिस्टेंट मोहम्मद इसहाक का बेटा निकला। 29 लाख से जायद की रकूम भी खजाने में अदा करने के बजाय खुद बुद की गई, जबकि एक्सरे फीस, लैब फीस, MLC फीस और ब्लड बैंक फीस की मद में भी लाखों रुपए अस्पताल इंतजामिया की जेब में गए। वार्ड सर्वेंट्स, चौकीदार और लैब अटेंडेंट्स मरीजों को इंजेक्शन और पट्टियां करते रहे। दौरान इंस्पेक्शन जनरेटर फ्यूल की मद में 20 लाख रुपए से जायद की खुदबुद का इंकशाफ हुआ। अस्पताल की लॉग बुक ड्यूटी डॉक्टर की बजाय लैब असिस्टेंट मोहम्मद इसहाक के स्पुर्द रही। अस्पताल स्टोर की चाबियां भी हकीम के स्पुर्द कर दी गईं। साबिक MS THQ डॉक्टर नवीस अफदर पर 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद के ठेके मनपसंद कंपनियों को फराहम करने का इल्जाम भी आयद किया गया है। ठेकों में प्रोक्यूरमेंट कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जियां की गई। डिजिटल एक्सरे की सहूलत से भी मरीजों को महरूम रखा गया। एनेस्थीसिया की मशीन भी इंस्टॉलेशन से मुसलसल खराब रही। महकमा सेहत ने इंक्वायरी की जिम्मेदारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर जमील सफदर के सुपुर्द करते हुए 60 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सूबा भर में अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब 22 करोड़ जारी। फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए 11 करोड़ 79 लाख जारी। टोबा टैक्सिंग में अद्वियात की खरीदारी के लिए 8 करोड़ 86 लाख मिलेंगे। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए 11 करोड़ 23 लाख जारी। चिन्योट में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए 6 करोड़ 25 लाख जारी। DHQ सरकारी अस्पतालों को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स दिए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स के इजरा के लिए स्टेट बैंक को मरासला जारी कर दिया। अब आपको बताएंगे, निगरान सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज का दौरा फैसलाबाद। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम की बहाली बारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। वजीर खेल ने शहर में खेलों के फरोग के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी की है। तफसीलात देखिए अली रजा की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज ने फैसलाबाद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अली नान कमर ने खेलों के मैदान और मौजूदा दरकार सूरियत के बारे में ब्रीफिंग दी। वहाब रियाज कम्प्लेक्स, हॉकी स्टेडियम, अल-फतेह कम्प्लेक्स, शहबाज नगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी गए। इस मौके पर सूबाई वजीर खेल का कहना था कि पहले मरहला में अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, क्रिस्टन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और हॉकी स्टेडियम के मसाइल हल किए जाएंगे। हॉकी के बाद हमारा एक हॉकी स्टेडियम बना रहे हैं हम, छोटा जो प्रैक्टिस ग्राउंड बना रहे हैं। उसकी पिच की जो थी वो कुछ कंप्लेंट्स थी, एक तो वो देखने आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद उसको हम ऑपरेटिव कर देंगे। और वंस वो ऑपरेटिव हो जाएगा और वो जितने भी बच्चे हैं या जितने भी क्लब्स हैं यहाँ पे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो यहाँ पर आए, अपने मैचेस खेलें, ताकि यहाँ पे हॉकी का जो एक शुरू से हमने सुना कि जी फैसलाबाद जो वो गढ़ है हॉकी का, तो उसको हम जो है वो दोबारा रिवाइव कर सकें। सूबाई वज़ीर खेल का मजीद कहना था कि अगर कोई क्लब हॉकी स्टेडियम में खेलना चाहे तो फ्री खेल सकेंगे। इनका मजीद कहना था कि अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड को फाल किया जाएगा, जबकि शहबाज नगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आइंदा 2 हफ्तों में किया जाएगा। ये हॉल जो है ये बच्चों के लिए हैं और इधर काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जिस तरह रेनोवेशन की ज़रूरत है, जिस तरह यहाँ पे हमें कंडीशंस की ज़रूरत है, हमें जो मैटिंग है वो चेंज करनी है, कुछ जगहों पे हॉस्टल जो है वो दोबारा से हमें रीबिल्ड करने हैं। सो हमारा ये मकसद ये है कि हम जो बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को वो दे सके। वहाब रियाज ने खेलों के मुताल्लिक कहना था कि गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा वहीद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ चिन्योट के जिला सदर साबिक टिकट होल्डर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, मैं हर चीज़ की कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं रियासत मुखालिफ नहीं हूँ। जुल्फ़िकार अली शाह ने मजीद क्या कहा, फिजा बताइएगा। लोगों ने कहा कि जी हालात खराब हैं, लोगों ने कहा कि जी हालात खराब हैं। कई सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ के लिए वक्फ कर दी थी। मुझे मालूम है कि आज के बाद मुझे शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा।
मुझे बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा कि मेरे खून में है ही नहीं कि मैं रियासत मुखालिफ हो जाऊं। मैं पार्टी ओहदे और पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। अगर यही सियासत है तो मैं ऐसी सियासी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बन सकता। जी हालात ख़राब हैं, कई दफ़ा सुना हालात ख़राब हैं, बाहर चले जाते। भाई मैं भी इस मुल्क के अंदर जो है, मेरी भी ज़िंदगी मौत इस मुल्क के साथ, और मैं इन हालात के अंदर मैंने ये फैसला किया है, मैं अपने पार्टी ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। फैसलाबाद में 28 मई को मैदान सजेगा। इमरान खान की खाली करदा नशिस्त NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकॉट कर रखा है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के हल्के 108 में 28 मई को ज़िमनी इंतखाबात होगा। PTI उम्मीदवार मियां फरूख हबीब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के उम्मीदवार खुर्रम शहजाद रेलवे इंजन के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मोहम्मद सज्जाद अख्तर कादरी करेन के निशान पर मद्दे मुकाबल होंगे। 28 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। 5,11,527 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 354 पोलिंग स्टेशन और 1,084 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के की आबादी 8.5 लाख के लगभग है। हल्के की अहम बिरादरियों में अराई, रहमानी, राजपूत, कश्मीरी शामिल हैं, जबकि अहम इलाकों में सत्याना रोड, डी टाइप कॉलोनी, अलामा इकबाल कॉलोनी, निसार कॉलोनी, समनाबाद, नाजमाबाद, झंग रोड, समंदरी रोड और पीपल्स कॉलोनी शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात में बड़े उम्मीदवार मैदान में न होने की वजह से इस मरतबा इलेक्शन की रौनकें न होने के बराबर हैं। अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं मुल्क की माशी हालात और डॉलर की ऊंची परवान से फर्नीचर साजी की सनत भी शदीद मुतासर हुई। देखिए वकार घुमन की रिपोर्ट में। चिन्योट शहर फर्नीचर साजी की वजह से मशहूर है। शहर में सैकड़ों कारखाने और हजारों कारीगर फर्नीचर साजी की सनत से वाबस्ता हैं, मगर अब मुआशी हालात और महंगे मटेरियल ने इस सनत को भी शदीद मुतासिर किया है। सदर वुड मेकर फर्नीचर एसोसिएशन यूनुस चौहान कहते हैं, ऑर्डर कम होने की वजह से बेशतर कारीगरों को कारखानों से निकाला जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो इंतहाई महंगा हो गया। हर चीज़ के रेट जो है वो डबल हो गए हैं। जैसे कि आरोडाइट है, उसका जो आरोडाइट में जो है 1 kg वाली मिलती थी 1500 की, वो अब 3500 रुपए की है। यूनुस चौहान का कहना है, लकड़ी और मटेरियल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ सड़कों की बुरी हालत ने भी खरीदार का रुख दीगर शहरों की तरफ मोड़ दिया है। हमारे चारों तरफ के जो रोड हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। पहले उनकी वजह से हमारे यहाँ पे कस्टमर जो है वो बहुत कम आता है। ऊपर से महंगाई होने की वजह से, हमारा रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो बहुत ही अरूज पर है। फर्नीचर साजी से वाबस्ता कारीगरों की बड़ी तादाद काम ना होने से माली मुश्किलात से दो चार हो गई है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। सीजन होने के बावजूद चिन्योट में बर्फ के कारखानों का काम ठप होने लगा है। शहर में 14 बर्फ के कारखानों में से सिर्फ 5 कारखाने रह गए। चिन्योट में शदीद गर्मी के बावजूद बर्फ के कारखाने बंद होने लगे। इस वक्त शहर में 14 बर्फ के कारखानों में से सिर्फ 5 चल रहे हैं। बर्फखाना के मालिकान का कहना है कि इंतहाई महंगी बिजली की वजह से लागत बहुत बढ़ चुकी है। अब 4 लाख रुपए की बजाय 12 से 16 लाख बिजली का बिल आ रहा है। लागत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से लोग ये कारोबार खत्म कर रहे हैं। हालात को नहीं, मौसम की खराबी की वजह तो ना ये नुकसान हो रहा है। बिजली की ज्यादा महंगी होने की सूरत में बर्फ खाने काफी खत्म हो गए हैं। अब 5 रह गए हैं जी, 2-3 और इस साल चले जाएंगे। कारखाना मालिक का मजीद कहना है कि अब सिर्फ बर्फ का कमर्शियल इस्तेमाल बचा है। घरेलू इस्तेमाल के लिए लोगों ने फ्रिज खरीद ली हुई हैं। बिल आंदा से जी 1 माह का जी 3-4 लाख, आज वही 12, 14, 15 लाख। शहर में इस वक्त बर्फ का ब्लॉक होलसेल रेट पर 800 रुपए से जायद का फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी ना की। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ मगर किराए कम ना हो सके। ट्रांसपोर्टर्स ने पुराने किराए बरकरार रखते हुए आवाम की जेबें खाली करना शुरू कर दी। समंदरी से लाहौर का किराया 650, फैसलाबाद का 150, साहिवाल का 300 रुपए वसूल किया जा रहा है। इस बदअमनी के दौर में हर कौम के अगर गरीब आवाम को कोई रिलीफ दिया भी गया तो उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की मद में खासे उन्होंने कमी की है। शहरी कहते हैं, अगर हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ दे ही दिया है तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी होश के नाखून लेने चाहिए। तुलबा का कहना है, तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए दूर दराज का सफर करना पड़ता है, मगर किरायों में कमी न होने से अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत से अपील यही है कि अगर आपने पेट्रोलियम मसनूआत कम की है तो आवाम को रिलीफ भी लेकर दें।
ان کے اوپر سخت امپلیمنٹ کریں، ان کے اوپر خلاف کارروائی کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے پر فوراً کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیا جا رہا۔ انتظامیہ ایکشن لے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ کیمرامین شاہد نعیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ دی لیگیسی انٹرنیشنل کالج کی افتتاحی تقریب، سی ای او لیگیسی اسکولز محمد یاسین، کوآرڈینیٹر عزیز الرحمان اور اسکول ہیڈ سعدیہ خان کی خصوصی شرکت۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دی لیگیسی اسکول گروپ نے ایف ایس سی، آئی سی ایس اور آئی کام کی تعلیم کے لیے دی لیگیسی انٹرنیشنل کالج لانچ کر دیا۔ سی ای او دی لیگیسی اسکولز محمد یاسین نے خصوصی شرکت کی۔ کوآرڈینیٹر عزیز الرحمان اور اسکول ہیڈ سعدیہ خان نے حاضرین کو ادارے کی کارکردگی بارے بتایا۔ How to develop a love for learning, because once a student is able to, you can say, they like their learning process here, they will be a good learner and as well as they will be a good student and they can produce excellent results. New campus and new program. It's a small event of celebrating or inauguration of the new campus. I hope you will love this event. It's a small step that we are taking towards spreading knowledge. Inauguration day, you always know, are very important. ایڈمنسٹریشن سے کنزا سید اور دیگر آفیشلز نے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے خصوصی لیکچر دیا۔ والدین نے دی لیگیسی اسکولز کی اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور لیگیسی انٹرنیشنل کالج کو شہر کے تعلیمی اداروں میں ایک اچھا اضافہ قرار دیا۔ میڈیکل سائنسز میں there are ample of opportunities and degrees، اور انجینئرنگ میں اگر آپ لوگ اپنا کریئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو you have to go for FSc. We are offering FSc pre-medical and FSc pre-engineering. We enable you to face the harsh reality of the world, to work there actively. آپ چاہے یہ your word video competition ہو، debates ہو یا community service کی کوئی activity. Because these are the majors which are being required for the international placements afterwards. When the students will be moving out here after getting passed out, these are the things they'll be required enough to move even further. Second child, Muhammad Rizwan, he also secured top 3,500 students merit in whole Pakistan, and he is student of Medical College, Sargodha Medical College, final year MBBS. تقریب میں سی ای او دی لیگیسی اسکولز محمد یاسین نے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ خبریں آپ نے جانی، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔